Radhe Radhe. Good evening to everyone. So today I started not with the economics but with some different subject. तो क्योंकि मेरे को almost सारे ही subject थोड़े करके cover करने हैं, so I thought to start with this current affair portion and I'm thinking कि with the Vision IAS magazine जो आती है, तो मैंने उसकी series अब start करी है. तो उस विजन आईएएस में एक्चुअली नवंबर से स्टार्ट करी हूँ, पिछले लास्ट 6 मंथ ऑफ बेसिकली मंथली मैगजीन. तो मैं नवंबर से स्टार्ट करी हूँ एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि फ्रॉम मे टिल मे कि मैं पूरा बिफोर प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ऑब्वियसली आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो ये कम्प्लीटली न्यू सीरीज़ है इकोनॉमिक. So I'm going to start with these things. Monthly magazine, which I'm going to complete before prelims of the UPSC 28 May. I'm try my best to complete all of those monthly magazines. So today I'm going to start with the November magazines, November 2022. Starting with the polity and governance, going to cover all of those topics. So I'm also trying to make a short note of these things. So let's start with our first topic, that is of polity and governance, that is our economically weaker sections. First topic we have, that is economically weaker section, quota. Everybody know this has been so much of debatable issues. इतना ज़्यादा debate में issue रहा था कि economically weaker section, whether reservation should be provided to the economical weakers or not. किस अगर देना है तो किस reservation किस standards पे देंगे, क्या criteria रहेगा, how it should be, and when it is given then so many petition has been filed in the Supreme Court and ultimately they have to give our decisions that this is the criteria which we have been set and this is absolutely valid. So why this has been so much in news? Before we have to understand what is EWS quota. ठीक है, so everybody know this has been given to in 2019 में दिया गया था. Reservation EWS stands for economically weaker section, right? रिजर्वेशन दिया गया था जिसमें कोटा दिया गया 10% का. सो वाई दिस हैज़ बीन यू. बिफोर दिस लेट मी टेल यू व्हाट इज़ EWS. सो EWS कोटा फर्स्ट ऑफ ऑल एक कमीशन बैठी थी, सिन्हो कमीशन नाम है. तो उसने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी. उस रिपोर्ट की कुछ रिकमेंडेशंस थी उसमें कि हमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है कि SC को रिजर्वेशन मिलता है, ST को रिजर्वेशन मिलता है, बट एक जनरल कैटेगरी में एक हिस्सा ऐसा भी है, एक सेक्शन ऐसा भी है जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है बट वो इकोनॉमिकली आर्थिक स्थिति से वो सही नहीं है. तो उसको उस प्लेटफॉर्म पे क्यों दिया जाता है? सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, राइट, इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए दिया जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको 10% कुछ रिजर्वेशन दिए सो दैट वो सबके इक्वल आ सके. तो उस दौरान कुछ रिकमेंडेशन दी गई एंड दैट रिकमेंडेशन इट वाज एक्सेप्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल EWS quota reservation, it is actually based on the recommendation, it was granted on the recommendation of सिन्हो कमीशन की उस पर दिया गया था report. It was submitted in 2010. So it was them. Then we have EWS one. That was the first thing. It was granted based on the recommendation of Sinho Commission. दूसरी चीज़ है, तो फिर जब ये recommendation दिया, then they have decided कि 2019 में they have passed this bill pass हुआ and finally the amendment has been made. और वो amendment पर 103rd amendment Constitutional Amendment Act of 2019 पास हुआ, जिससे क्या हुआ, उसने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अमेंड किया. अमेंड मतलब चेंज किया, बदलाव लेके आए. आर्टिकल 15 किया, उसमें आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 ऐड किया और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 ऐड किया. ठीक है, सो आर्टिकल 15 ऐड किया और आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 6 सी. I think I'll give you, these are my own personal notes which I'll try to make short notes because otherwise it's very difficult to learn all of these things because already you don't have a time to write all of these things because इतना time भी नहीं होता कि इतना सब कुछ लिखो. So it's better to make a short note of these things and try to memorize all the points so that you can make your own answer with that, right? So I just make a short note of these things explaining you. So we have article 15 and article 16. फाइन. सो इससे ये 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिससे क्या हुआ, आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 ऐड किया गया और आर्टिकल 16 में भी क्लॉज 6 ऐड किया गया. अब ये क्लॉज क्या है? ये क्लॉज जो है बहुत ही सिंपल है. इट हैज़ अलाउज दी सिंपल, इट्स इन सिंपल टर्म्स इफ आई वुड से आर्टिकल 103 इट हैज़ एडेड, इट इंसर्टेड आर्टिकल 15 हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में
ये 2 नए आर्टिकल्स ऐड किए गए जिसमें क्या होता है, वो EWS को रिजर्वेशन देते हैं। EWS में कौन? दोज हु आर नॉट इंक्लूडेड इन द नॉन OBCs, नॉन SC/ST सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशंस, राइट। सो वो इंक्लूड किए जाएंगे एंड अलाउज बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करता है टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन टू द EWS। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी बोलता है कि आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। EWS का 10% ऑफ रिजर्वेशन दिया जाता है, राइट। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के लिए यह है कि एक ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट का, यह है कि अगर वो चाहे वेदर और नॉट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, दोनों है, अलाउ वेदर और नॉट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, दोनों चीज़ें हैं, राइट। रिजर्वेशन दे सकते हैं इन अपॉइंटमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, राइट, कि अगर वो चाहें, अगर उनको लगता है सुटेबल, तो वो रिजर्वेशन दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, राज्यों की सरकार की बात कर रही हूँ, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशंस टू स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। दिस इज़ फॉर स्टेट गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद तो आर्टिकल 15 क्या कहते हैं? सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। आर्टिकल, रिमेंबर दीज थिंग्स, आर्टिकल 15 बात करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, आर्टिकल 16 बात करता है गवर्नमेंट पोस्ट, रिजर्वेशन, अपॉइंटमेंट, इन सब की, ठीक है। सो आर्टिकल 15 क्या कहता है? यहाँ पे वो 10% ऑफ सीट रिजर्व करता है इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो क्लॉज 6 जो वाला जो ऐड किया गया था उसमें बात कर रही हूँ, जो क्लॉज 6 ऐड था, राइट। इट इज़ नॉट अप्लाई टू दी माइनॉरिटी एजुकेशन स्टूडेंट, माइनॉरिटी जो, और जैसे मुस्लिम्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसमें ऑलरेडी मुस्लिम जैसे माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन है, अगर उसमें भी 10% रिजर्वेशन दे दोगे तो फिर सीट्स बचेंगी ही नहीं ना। तो इसीलिए ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दिया 10% रिजर्वेशन EWS को मिलेगा, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नॉट अप्लाई, दैट्स व्हाट इज अ माइनॉरिटी, बिकॉज माइनॉरिटी वाले में अगर उनको भी मिल जाएगा तो कि फिर सीट्स बचेंगी ही कहाँ। सो आर्टिकल 16 में दे विल हैव, आर्टिकल 16 में टू रिजर्व 10% ऑफ ऑल दी पोस्ट टू EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो गवर्नमेंट पोस्ट है 10% रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें, जिसमें राज्य सरकार अगर चाहे, सेंट्रल नहीं, राज्य सरकार अगर चाहे तो नहीं भी दे सकती है, बिकॉज दे हैव अ ऑप्शन, वो अलाउ है, ठीक है। इन एडिट, सो बेसिकली EWS जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है, ये किसी का रिजर्वेशन ले नहीं रहा है, ना किसी का छीन रहा है, बल्कि इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है SC ST का, OBC का, उसी में अपना एक अलग, तो दैट्स व्हाट इट इज़ अ सेपरेट एंड अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी, बिल्कुल अलग कैटेगरी है, उसमें ऐड किया गया है। सो बेसिकली अब ये किसको दिया जाता है? EWS, हु आर दोज पीपल हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस EWS रिजर्वेशन। सो बेनिफिशियरीज कौन होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दोज हु आर नॉट कवर अंडर द SC रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंड OBC, जो इसके अंदर नहीं आते हैं वो वाले लोग इंक्लूड होंगे। पहली चीज़, जिनकी ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो 8 लाख होगी, ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो 8 लाख होगी, वो इट विल बी आइडेंटिफाई एज अ EWS फॉर रिजर्वेशन के लिए। तीसरी चीज़ है, एंड उनको और किसको एक्सक्लूड किया जाएगा? एक्सक्लूडेड वर दोज हु हैड 5 acres ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, राइट, 5 acre ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जिनकी 5 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड होगी वो EWS कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, राइट। और रेजिडेंशियल फ्लैट जिनका वो भी एक्सक्लूड, सो आई मेंशन दीस थिंग, कौन कौन एक्सक्लूड किए जाएंगे? एक्सक्लूड है जिनका 5 acre ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, 1000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल फ्लैट है, रहने का रेजिडेंशियल फ्लैट है, 100 स्क्वायर यार्ड जो है रेजिडेंशियल प्लॉट है, एक नोटिफाई, रिमेंबर दीस थिंग, दोनों में डिफरेंस है, 100 स्क्वायर फीट है फॉर रेजिडेंशियल प्लॉट है नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटीज़ में, 200 स्क्वायर यार्ड है इन अदर एरियाज अपार्ट फ्रॉम दीस थिंग, जिनका भी 100 स्क्वायर यार्ड से कम है उनको रिजर्वेशन मिलेगा, जिनका 1000 स्क्वायर फीट से कम है उनको रिजर्वेशन मिलेगा, राइट। ग्रॉस एनुअल इनकम जिनकी 8 लाख से कम है उनको रिजर्वेशन मिलेगा, जो SC ST एंड OBC के अंदर नहीं आते एंड दे आर फुलफिलिंग ऑल दीज क्राइटेरिया, उन सबको रिजर्वेशन मिलेगा, right? So in general, in short, if I would say these things, okay, let me explain these things. Article 15 और 6 का clause और Article 16 और 6 का clause मैं explain कर दूँ एक बार। क्या कहता है Article 15 clause 6 कहता है it enables the government इसका स्टेटमेंट जो है, इसकी जो एक्चुअली लीगल लैंग्वेज है, मैं पहले वो रीड आउट कर रही हूँ। इसकी लीगल लैंग्वेज कहती है आर्टिकल 15(6) की इज it enables, see, you will understand, or when you break these terms now, you will understand what does it mean. See, I have mentioned here article 15(6) कहता है it enables the government to make special provisions
स्पेशल मतलब क्या हुआ कि ये अलाउ कर, आर्टिकल 15 जो 6 ये ऐड किया गया उसकी बात कर रही हूँ, ये अलाउ करता है सरकार को कि ये कोई स्पेशल प्रोविजन, एक अलग, एक स्पेशल प्रोविजन मतलब एक अलग तरीका, एक अलग जरिया बना सकती है फॉर दी एडवांसमेंट ऑफ EWS, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक स्थिति से पिछड़ी जाती है, उनको बेहतर करने के लिए कोई एक ऐसा तरीका बना सकती है गवर्नमेंट को, वो अलाउ करेगा सिर्फ उनको छोड़ के, अदर देन दोज हु आर ऑलरेडी मेंशन, अदर देन दोज, तभी आई मेंशन लिखा है एक्सेप्ट मेंशन आर्टिकल 15(4) and 5 में मेंशन, सो दिस अदर देन दोज ऑलरेडी मेंशन आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 15(5), मतलब उन लोगों को छोड़ के जो आर्टिकल 15(4) के अंदर आते हैं और आर्टिकल 15(5) के अंदर आते हैं, उनको छोड़ के। अब ये क्या है, उसमें हम अलाउ दिस रिलेट टू दी एडमिशन टू दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, राइट। सो आई टोल्ड यू आर्टिकल 15 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। अब 15(4) एंड 15(5) क्या कहता है, में क्या है, सो ये इंक्लूड करता है जो सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC और ST की इंक्लूड करे। सी and now you're able to crack these things, so इसका मतलब है गवर्नमेंट गिव अ स्पेशल प्रोविजन फॉर दोज फॉर द एडवांसमेंट ऑफ EWS एक्सेप्ट जो मेंशन है 15(4) एंड 5 में। 15(4) 5 में कौन मेंशन है, SC ST SC BC। आर यू एबल टू क्रैक दीज थिंग्स? तो ऐसा होता है, तो एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। इन द सेम वे आर्टिकल 16(6) किससे रिलेटेड है, सेम लैंग्वेज है, इट enables the government to make special provisions for the advancement of economically weaker sections other than those who are mentioned in the article 16(4). अब इसमें, और ये किससे रिलेटेड है, फॉर द प्रमोशन इन द अपॉइंटमेंट और पोस्ट, वही मैंने बोला गवर्नमेंट पोस्ट के लिए रिलेटेड है। सो 16(4) में क्या इंक्लूड करता है, इसमें इंक्लूडेड है दोज बैकवर्ड क्लासेस which in opinion of crack these things, इसको हम ब्रेक करके समझेंगे। what does it means ने कहा कि basically those backward class 16(4) में वो पिछड़े क्लास इंक्लूड है जो राज्यों के ओपिनियन में, which is in the opinion of states, right, are not adequately represented in services, सही तरीके से सर्विसेज में रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं, उनको सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, उनको छोड़ के। इसका मतलब वही SC ST वाले लोग हो गए। तो वही सेम चीज़ है कि एडवांसमेंट ऑफ दोज पीपल जो एक्सेप्ट आर्टिकल 16(4) को छोड़ के, उनको प्रमोशन अपॉइंटमेंट और पोस्ट मिले में अलाउ करेंगे। सो आई एम रीडिंग आउट द थिंग्स हियर, अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड explain me, and you can comment, I'll explain it again. So or you can watch it again from the beginning what I'm trying to explain, because मैंने बहुत ही simple language में एक चीज़ें explain की, what do you mean by the EWS, right? So I will explain these things in parts because my phone records only a limited video, but because otherwise it's not possible to explain whole video in a 20 or 30 minutes video, right? So I'll explaining these things in the exact language. Right. Now I'm reading the statement for you, right? About EWS quota. What have they said? EWS reservation was granted. EWS reservation was granted based on the recommendation of Sinho Commission, right? Which I said कि मैंने कहा Sinho Commission की recommendation के basis पे EWS reservation दिया, which is submitted report in 2010. Sorry. Okay. EWS reservation was granted based on the recommendation of Sinho Commission, which is submitted report in 2010. Same language है, Sinho Commission की recommendation के basis पे reservation दिया गया है. Then we'll have 103 Amendment Act 2019 पास हुआ, which inserted Article 15(6) and Article 16(6) in Constitution to provide reservation to EWS among non-OBC and non-SC section of the population. I said किसको reservation मिलेगा, जो non-OBC है, non-SC SC sections है। उसके बाद the act enables both central and state government to provide reservation to EWS. Same thing, ये allow करते हैं central and state government को to provide reservation to EWS. Then however it allows the state governments to decide whether or not to provide reservation to EWS for appointment in state government jobs and admission to state
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वही मैंने बोला कि लेकिन ये राज्य सरकार को अलाउ करता है कि वो चाहें तो और ना चाहें तो रिजर्वेशन दे सकती है टू EWS को इन अपॉइंटमेंट। राज्य सरकार की जो जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब जो है, और जो एडमिशन चाहे स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, राइट। ये एक्ट अमेंड करता है आर्टिकल 15 को टू एडिशनली परमिट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर एडवांसमेंट ऑफ EWS, राइट, कि जहाँ पे सरकार एडवांसमेंट फॉर EWS के लिए रिजर्वेशन दे सकती है, जिसमें 10% ऑफ सीट में भी रिजर्व फॉर सच सेक्शंस फॉर एडमिशन एंड एजुकेशन, जहाँ पे वो 10% सीट रिजर्व कर सकती है एडमिशन एजुकेशन के लिए। सच रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई इन माइनॉरिटी एजुकेशन, आई सेड ये अप्लाई नहीं होगा माइनॉरिटी एजुकेशन में, जहाँ पे जैसे अगर मुस्लिम्स की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसमें ही अगर देने लगे तो फिर सीट्स ही नहीं बचेंगी ना। देन वील हैव द एक्ट ऑल्सो मेंशन आर्टिकल 16 टू परमिट द गवर्नमेंट जॉब, सेम चीज़ है, 10% रिजर्वेशन टू ऑल द पोस्ट टू वीकर सेक्शन सिटीजन्स। देन आई हैव EWS रिजर्वेशन इज इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन मिलेगा अ पर्सन, किस किस को मिलेगा, हु आर नॉट कवर अंडर रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBCs, और जिसकी फैमिलीज का ग्रॉस एनुअल इनकम जो है बिलो 8 लाख रहेगा, वॉज टू बी आइडेंटिफाई EWS for रिजर्वेशन, also excluded for those who had 5 acres of agricultural land, सेम लाइन है, राइट। एंड रेजिडेंशियल फ्लैट जिनका 1000 स्क्वायर फीट रहेगा, रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटीज में 200 इन अदर्स में। आर्टिकल 15(6) और 16(6) को समझ लेते हैं क्या होता है। इट एनेबल्स दी गवर्नमेंट, सेम लाइन है, टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, those except for those who mentioned article 15(4) and 15(5) में, and for the admission education institutions related है। 15(4)(5) में क्या mentioned है, social and educationally backward classes for SC and ST। 16(6) में enables the government to make special provision for the advancement economically weaker section except 16(4) को छोड़ के। 16(4) में क्या है, promotion of the appointment or a post, government post के लिए रहता है। article 64 relate to the reservation for those which for backward classes which in the opinion of the state are not adequately represented in its services, उनके लिए रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट वील हैव व्हाई इट इज़ बीइंग सो मच इन न्यूज़। दिस हैज़ बीन सो मच इन न्यूज़ बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट दे हैव, उसने ये इस बार दे हैव एक ठप्पा लगा दिया है कि नाउ ये जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था ये कम्प्लीटली वैलिड है। इट हैज़ अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने 10% कोटा रिजर्वेशन दिया था फॉर EWS के लिए इन द एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट।